Hello and welcome to a fresh new season of the project that is closest to my heart, Random Musings. It started in 2021. We have had one season per year, and my notebook is out after a year now. And this is not just a notebook, but also a trip down memory lane, as most notebooks are. And we started season one thinking the idea was to have guests and talk about topics that they usually don't talk about publicly, and to have a nice conversation around it. Thank you for so much love that you guys have given to Random Musings on YouTube, on Spotify, on Apple Podcasts. Okay. On that note, we are starting a fresh new season of Random Musings. Season 3, our first guest, and first guests are always special in every season. That's why we had Samara Sheikh and then Gopal Dutt. This one is again someone who I admire a lot, not just as someone who is out there and creates content that is for you to consume, but for me as an individual, because I've gotten to know him uh, over the past few years, and I've always admired the kind of conversation he does, the kind of person he is. And you've heard him speak about neuroscience and how the brain functions and a lot of aspects of our life. So today we are trying to talk about some other topics, hopefully. So someone, like I've said 10 times already, someone I admire a lot, and I'll premiere this season with him, bringing a new guest for new season. Give it up for Siddharth Warrior, Sid Warrior. Hello, Welcome, Sid. hello, hello. So happy to have you here as our first guest for season 3. Are you excited? Thank you so much. I have to say, I have always loved your show, Kumar Varun, and I have loved all of the conversations that you have, whether here or with in quizzing. I've always found that you have a way of making intelligent conversations super fun, and लोगों को पता भी नहीं चलता कि intelligent conversation हो रहा है. So I've always really admired that. I'm so glad to be here. Chalo. Okay, let's start. Sid, very excited. I want to start with a brand work I did. Okay, I want to share that brand work with you. It was very life full circle because I'd come to Mumbai to join Mahindra Group. And then 10 years later, I did a brand work for a Mahindra vehicle, which was an electric SUV. Right. Okay. An automatic, beautiful car, great car. Now, I learned driving in the year 2008-9 times. Okay? And this is a generation where driving means this. The Otherwise, gears. there is no driving, you know. And then over the years, I drove a lot. Like I was in Delhi and we used to keep driving to Rishikesh and Pushkar and Ranthambore and Shimla, Chandigarh, blah, blah, blah. And then I moved to Mumbai, and then driving thodi kam ho gayi. And I haven't driven a lot in the past few years. Okay. Right. And now we have automatic cars. Okay. People say automatic is very easy. कुछ नहीं करना है. Scooty चलाने जैसा है. कुछ नहीं. Just start and sit. I tried driving the car that I have now, which is an automatic one. I got so scared thinking, why? I had very weird feelings कि ऐसा दबाऊंगा तो ऐसा भाग तो नहीं जाएगा, कुछ तो नहीं हो जाएगा. So this car, when I was driving for the shoot, I drove it the whole day, and I had very mixed feelings. I was like, गाड़ी start हो गया क्या? That's how it began. Because for us, for me, गाड़ी start होना मतलब that has to happen. Otherwise, you don't feel like you're driving. Sound effect के बिना मजा नहीं. Like शुरू हो गया क्या? And then driving, there is no noise. Right. It was crazy. So I want to start with this topic because I've been thinking about this since yesterday. What has your driving journey been? Are you automatic, non-automatic, manual, gear? So I've been driving since I was 17. I've loved driving always. मुझे हमेशा बहुत मजा आता था. And driving has always been a very special thing for me because when I was a resident in KEM, हमें घर जाने नहीं मिलता था. ठीक है. So 3 साल it was in the hostel, and sometimes you won't even get time to go to the hostel room because you know you're so busy, and the hostel room is shared. So 3 other people, 4 other people. So you never get space. तुम्हारा जो घर वाला feeling है वो कभी नहीं मिलता था. I had a car in my second year, and it was just parked in the parking space. I didn't even get time much to take it out, but sometimes I would get around 10 minutes ka break. I would go and sit in my car. And that 10 minutes just felt like, chalo, in the middle of all this chaos, there is this one place which is mine. You know, it's like a ghar.
So you get that sense of attachment with your car. And so when I take the car out, you feel free. एक freedom का feeling आता है. So I've always been very attached to driving to my car. And मेरे लिए वो ड्राइविंग का मजा ही वो गियर चेंज का आवाज है. You know, when you're going up or when you're going down, वो जो गियर का चेंज होता है, to know exactly कौन से मोमेंट पे गियर चेंज करना है, वो जो मोमेंट का मजा है ना. Oh man. So the first time I drove an automatic, what I realized is that अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं गियर अब चेंज करता, लेकिन the automatic takes around 1 to 3 seconds more before it realizes कि अच्छा गियर चेंज का टाइम आया. So you can feel the acceleration, but वो engine का आवाज आ रहा है कि भाई चेंज कर, and then the gear changes. So for me, automatic का problem वो है कि the gear doesn't change exactly when I want it to change. Of course, उसके advantages बहुत है because people who don't know how to change a gear, उनके लिए तो automatic is a lifesaver. But yaar, I still miss it. I still want a gear. So what do you drive now? Do you drive automatic? So right now we have two cars. So I have an old car which has a gear, and we have a new one which is automatic. So the new one, initially I thought I'll take it, but now my wife is taking it, and I'm very happy. I'm very happy with mine. I know that eventually gear will go out of fashion. वो तो inevitable लग रहा है अभी, especially with electric. So I'm just going to enjoy it while it lasts. अभी और क्या ही बोले, ठीक है. जब तक होगा, I think I'll become one of those, you know, like बाबूजी जैसे बोलते थे, कह रहे टाइपराइटर का जो मजा आता था. I think I will be one of those people. Yeah. 100%. I think हमारे लाइफ के काफी एस्पेक्ट्स में हम वो बनते जा रहे हैं, where न्यू टेक का वी आर लाइक, बट उसका जो मजा उसका जो डायल अप मोडेम का जो मजा आता है. डायल अप मोडेम. Oh my God. Oh, age is a topic that we should which is always on our mind, because very recently I posted something about a Walkman on LinkedIn or somewhere, about how Sony changed the game with Walkman and all. And there was someone who, not a troll or anything, very sincere comment, which was something on the lines of ki, what is this Walkman? It was very, very genuine comment, okay, which said, I remember in good old days, मैं underline कर रहा हूँ, good old days, there was a thing called iPod, where people could carry music and roam around. What is this Walkman? Oh my God. मुझे रियलाइज हुआ यार क्या हो रहा है ये. मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी हमारा जनरेशन 2-3 कदम आगे बढ़ गया है. मतलब जनरेशन गैप भी ट्रिपल हो चुका है 3 साल में. I'm dealing with kids who don't even remember things that have happened as 5 years ago, 6 years ago. मतलब क्या चल रहा है? I'm sure that there are people in the audience listening right now who are going through things that they really like. But trust me, guys, ये सब कुछ तुम भी नॉस्टैल्जिया से ही देखोगे बाद में. 100%. जैसे आपको पता है ये, बट लेट नाइट जब हम लोग पार्टी वगैरह करते हैं तो आई प्ले दिस क्विज वेयर आई फॉर्म 2 teams and I play songs and you have to identify songs. And very recently in a room, it was a mix of people, Right. So I was playing songs और मैंने बर्फी का गाना चलाया. I repeat, बर्फी. ठीक है, बर्फी चलाया और उस रूम में किसी ने बोला यार नए गाने चलाओ ना यार, ये क्या पुराने गाने चल रहे हैं. बर्फी कब से पुराना गाना हो गया? पुराना एटलीस्ट 90s को पुराना बोलते हैं यार. एग्जैक्टली. मतलब अभी तो जैसे हम लोग सोचते हैं ना कभी कभी कि 1985 मतलब 15 साल पहले. ओहो दिस तो क्या है, वो अभी भी somehow 2000 में अटक गया है. मेरा भी दिमाग 2000 में अटक गया है अभी. and every few months there is this thing कि dash years of this movie, है ना? And then you realize कि 22 years of दिल चाहता है. नहीं नहीं. Oh no, that is depressing. Yeah. But with age and this thing said, one thing that is happening to me, I'm sure happening to you as well, is this inclination towards what is life. You know, what is, थोड़ा spirituality हमारे लाइफ में थोड़ा बहुत आ रही है. थोड़ा कि क्या है ये जीवन, क्या है, जो हम लोग बहुत ऐसा जोकिंगली बोलते हैं, but sometimes when you sit and think,
at least I'm going through that phase where I am genuinely, and I rarely talk about it in public, but this is the idea of random musings, is I genuinely started asking कि क्या है मेरा purpose? What am I doing? Why am I doing? And very recently I did a show in Pune, stand-up. Stand-up तो अपनी रोजी रोटी है, कमाई चलती है, बहुत अच्छा है सब कुछ. And after the show I was just standing, वो पोस्ट शो हाई जो होता है, मैं खड़ा था, चाय पी रहा था और लोग निकल रहे थे सामने से. एंड आई रियलाइज्ड ये लोग क्या सोच के जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया. आई हैड वेरी एग्जिस्टेंशियल थॉट्स. आई कॉल्ड राहुल फ्रॉम पुणे एंड आई टोल्ड हिम कि क्यों करते हैं यार हम लोग ये स्टैंड अप वगैरह, लाइक आई वाज ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग इन दिस. एंड देन राहुल ट्राइड हिज बेस्ट टू गिव सम मीनिंग, वेरी सेड कि नहीं नहीं वी आर मेकिंग पीपल हैप्पी, एंड हूएवर वाज लीविंग, जिसको तुम देख रहे थे, उनके 1-2 घंटे बहुत हंसी खुशी से गए हैं, उनके जीवन में अच्छा है. बट मैं सोचने लग गया, इज इट इनफ? लाइक 10 साल बाद, 20 साल बाद लोग किसके लिए, इतने सारे सवाल. फिर क्या एंड हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स भी, हमारे स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हमारे एज के ही है ना, तो आई रियलाइज ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू व्हाटएवर वी आर डूइंग, वेदर वी आर वर्किंग इन आईटी और कॉमेडी और कंटेंट क्रिएशन और व्हाटएवर, हम सबका वो चल रहा है कि क्या है, क्यों है, क्या है ये दुनिया, क्या करना क्या है. And I know you and I, last time we met in a very spiritual setting, where we were in a spiritual getaway type thing, and वहाँ तो obviously इसकी बातें बहुत हो रही थी. So now I want to steer a conversation about what you've been thinking in the realms of spirituality and karma and everything. I have so something happened with me around 3 years ago. As you know, I'm practicing as a doctor. I'm a neurologist. तो neurologist बनने के लिए काफी साल तक you have to ट्राई, ये लाइक MBBS का 5 साल हो गया, फिर 3 साल MD, फिर 3 साल DM, तो सब मिला के कुछ 15 साल निकल जाता है बिफोर यू कैन प्रैक्टिस एज अ न्यूरोलॉजिस्ट. सो आई फिनिश्ड ऑल ऑफ इट. मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, मुझे न्यूरोलॉजी सीखना है. तो बाय द टाइम आई वाज 23-24 आई हैड दैट पर्पस. और इससे काफी मुझे कंफर्ट भी मिला था कि अच्छा बाकी सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि अच्छा मुझे क्या करना है, बट लुक आई एम सो क्लियर. I finished neurology का entrance exam. I finished my final exams in 2019. I came back to Bombay. मैं लखनऊ में था 3 साल. मैं बॉम्बे आया. I started my practice in January of 2020. And on my 3rd day of OPD, मैं बैठा OPD में, and I realized कि मुझे ये नहीं करना है. And that was a big shock. And I don't think I've ever spoken about this before in public. That was a big shock for me. Because I realized कि मुझे और भी कुछ करना है. कि it's not like I don't like doing this. I love doing this. But if this is the only thing I do, I will not be happy. तो I started looking up ऐसे writing fellowships. मुझे पता नहीं चल रहा था क्या करना है. I started applying to Massachusetts में there was a writing fellowship for 3 months. I thought कि चलो कुछ तो जाके कुछ तो करेंगे. And then the pandemic happened. And then everything else happened, content creation and all that. So you get some other outlet. But since that incident, I realized that ये जो existential crisis है, वो किसी के साथ भी किसी भी वक्त आ सकता है. No matter how clear you are कि ये है, there is always a possibility that you might suddenly find yourself unsure, asking about what is the purpose of what I'm doing. One thing that helped me was reading Bhagavad Gita. मुझे वो बहुत helpful लगा because वो काफी complicated questions को काफी simple तरीके से break down करता है कि don't think about outcome, think about process. तो ये अभी का मेरा current, like I am 35 years old now, so I will not pretend that I have achieved a lot of life experience yet, but अभी का मेरा ये कहना है कि whatever you have to do, think about the process, not the outcome. तो जब लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, अब मैं कहता हूँ कि उससे फर्क ही नहीं पड़ता. तुम सोचो कि तुमको कैसा जीना है, like what do you want to do, what is the process you want to do, and then the outcome doesn't matter. So आपको अगर if you are talking of stand-up comedy, forget about the label of stand-up comic. What is in the process that you like? आप अगर उसी के बारे में सोचते रहोगे, I feel like you will find a lot more answers. Because everybody gets caught up in the definitions. वो final definition जो है कि अच्छा what is your job? Forget about the job. Just think about the process. आपको क्या करने में मजा है? You like observing things.
You like finding humor Hmm. inside those observations. Hmm. That is the process. That is your karma. Hmm. So for me, just understanding that. So for me, मुझे क्या अच्छा लगता है? I like reading about human behavior. I like Hmm. understanding why do people behave like this. Hmm. And I like understanding कि अगर कोई suffer कर रहा है, somebody is suffering from something, Hmm. why is that disease happening and what can I do to solve it? बस वो है मेरा कर्म. अभी Hmm. तुम उसको डॉक्टर बुलाओ या कंटेंट क्रिएटर बुलाओ, Hmm. Hmm. फर्क नहीं पड़ता. Hmm. Hmm. That is where I am at this Hmm. moment. नहीं, बहुत इट्स वेरी वेरी रिलेटेबल Sid, because I have been through this very similar journey over the last 2-3 years. I think advent of pandemic, आपका मेरा टाइमलाइन मैच कर रहा है उस मामले में, कि अपना भी करियर वही हुआ ना, कि पहले कुछ कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो Right. किसी रीजन से कर रहे थे, फिर आईटी में नौकरी, एमबीए, ब्रांड मैनेजमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला. बट और कई बार हम बहुत सी चीजों को एट्रीब्यूट कर देते हैं लक पे, और शायद वो बहुत बड़ा फैक्टर है भी, कुछ नहीं पता मुझे. ठीक है, कि कुछ सही, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम से कुछ चीजें हो गई, यहाँ से ये हो गया, वहां से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, वगैरह वगैरह. बट जो आपने कहा कि प्रोसेस पे ध्यान दो, दैट हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर मी आल्सो इन द लास्ट 1 or 2 years फॉर श्योर. जहाँ क्योंकि ऐसा एक तो थोड़ी लाइफ में अर्जेंसी आ गई है कि नहीं नहीं, समय निकल रहा है. पैंडेमिक का इफेक्ट बोल लीजिए, उम्र का वो इफेक्ट बोल लीजिए, बट हो रहा है कि नहीं नहीं यार, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है. एंड नाउ आई ओनली सी कि क्या है, मतलब क्या करने में मुझे जेन्युइन जेन्युइन जॉय मिल रहा है, हाँ. और उसको ही परसू करते हैं जेन्युइन. जैसे आपने कहा कि जैसे जो आपके लिए न्यूरो साइंस है, मेरे लिए वो क्विजिंग है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. कि मुझे ये है कि करना है, बट क्या क्विज करना है. Then I realized quiz is a medium, but my larger purpose, and this is very awkward to say in public, but larger purpose I feel है कि to enlighten people and to educate people. एंड एडुकेट नॉट इन सेंस कि बैठो मैं बताता हूँ, जस्ट टू स्पार्क थॉट्स. मेरे को बस इतना करके निकल जाना है कि भाई ये एक हल्का सा ये है, बाकी तुम्हारी श्रद्धा है. मैं ना तुम्हारा टीचर हूँ, ना पेरेंट हूँ, ना कोई ऐसा बड़ा भाई हूँ, छोटा कुछ नहीं हूँ. मैं तो एक अदना इंसान, तुमको बस बोल रहा हूँ कि एक थोड़ा सोच लो यार, थोड़ा थोड़ा सा. और वो सोचने के मेरा नाउ आई रियलाइज एवरीथिंग आई डू इज टुवर्ड दैट. कि ऐसा छोटा सा कुछ, ऐसा मैंने दो तीन नई चीजें चैनल पे शुरू की है, वो सब ऐसे ही हो, कोई व्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये है कि शायद कुछ थॉट आ जाए तुम्हें, कुछ जाए. Brilliant. वाह. Just light a spark. Just एक, अगर if 100 people listen to you, उसमें से अगर 10 लोगों के दिमाग में भी एक स्पार्क भी हो जाए ना, कि अच्छा हम लोग इसके बारे में भी इंटरेस्ट आ गया है, that might change their life because of you. वो तो बहुत ही बढ़िया चीज है. Even I feel that sometimes when I talk about neuroscience, I feel that out of 100, if even one person looks at their life differently, looks at their own experiences differently, उसके वजह से अगर उनका behavior change हुआ, what else do you want? मतलब हमारा जो भी कहने का सारा मतलब उसी में आ जाता है. जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि दी ओनली पर्सन यू कैन चेंज इज योरसेल्फ, है ना. तो अगर उस चेंज की वजह से कोई चेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. मेरा तो वो पर्पस भी नहीं था, मैं तो खुद के एक्शंस कंट्रोल कर रहा था. आपको लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं. जीवन जीते रहे, सबका अपना अपना तरीका है. तो डू यू कीप रिविजिटिंग गीता? I do. So I have this thing that every 3 years or 4 years I will read it. And in the middle I won't. Matlab not end to end. Like sometimes I will try to look up a particular verse, but end to end I have read it already thrice now. And what is very interesting is that every time I read it, it's like a brand new book. Because my understanding has changed of life. मेरा knowledge बदल गया है. तो last time जब मैंने पढ़ा, I think 2021 में, I was understanding everything from the perspective of neuroscience. So if there is a line that says that our pleasure is linked to our senses, भाई ये तो neuroscience textbook में भी लिखा है, भगवत गीता में भी वही लिखा है. So now I am correlating everything with, can this be understood from a scientist's perspective? कि is religion and science so apart? कितना अलग अलग है कि उसका कुछ ओवरलैप भी हो सकता है. And I find a lot of pleasure in finding those overlaps. कि अच्छा, it's not antagonistic. भाई दोनों चीजें हमारे लाइफ को हेल्प ही कर रही है ना.
तो इसमें इसमें गलत क्या है? हम्म। और मैं मतलब अगेन रिलेटेबल आपसे कि मैं भी भगवत गीता और महाभारत इन जनरल एंड भगवत गीता इन इन स्पेसिफिक काफी ज्यादा रेफर करता हूँ। ओके। और एक जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही कॉमनली मिस्टेकन चीज जो दुनिया को लगती है कि वो भगवत गीता को एक बहुत ही रिलीजियस टेक्स्ट की तरह परसीव करते हैं। जबकि मेरे बहुत स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवत गीता में मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट की तरह देख भी ले तो इट इज सो यूनिक बिकॉज अनलाइक एनी अदर रिलीजियस टेक्स्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ, भगवत गीता नेवर टेल्स यू कि ये कर, यहां जा, दिन में ये कर तो ये होगा। इट द होल भगवत गीता इज अ जर्नी इनवर्ड। इट इज नॉट अ, जिसको क्या कहते हैं, इट्स नॉट कमांडमेंट्स, ये करने पे ये होगा। It's very, it stirs you towards, it gives you meaning in a way which is not very instructional, है ना? इट्स वेरी लाइक जो आपने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते को आपने रेफर किया, तो ये नहीं कह रहा है कि सब छोड़ दो, ये वो जो हमने थॉट स्पार्क वाली बात की ना कि उसका इंटरप्रिटेशन भी सबका अलग अलग हो सकता है, बट वो आपको एक थॉट स्पार्क करके छोड़ देता है कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं थोड़ा। और वो इनर जर्नी बहुत मुझे लगता है। But I will say this, that to follow the Bhagavad Gita is not easy, because I feel that what it is asking you to do is actually much more difficult than just follow orders. तो मुझे कभी कभी लगता है कि लाइफ में अगर कोई मुझे बताए कि ये चीजें करनी है, सुबह उठ के ये करो, फिर दोपहर को ये करो, शाम को ये करो, अगर 5 चीजें बताए कि ये करो, मे बी माई लाइफ वुड बी इजियर. But what Bhagavad Gita asks you to do is to reflect and think about the point of existence, कि इसका मतलब क्या है. तो Bhagavad Gita is actually asking you to grow up and become more than what you are. So, so it is actually extremely difficult. It's not a simple thing. What they say कि it's not blind faith. You have to truly understand कि हम लोग का एक्शन में ही सब कुछ है. To understand that it is very challenging. भाई मतलब कितने बार पढ़ने के बाद भी you still struggle with it. धक होने लगता है कई बार. धक होने लगता है. मैं रिसेंटली नासिक गया था और मैं सुबह सुबह एक ये कर्म के बारे में पढ़ रहा था और एकदम वो होने लग गया, धक 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 कि अरे नहीं नहीं नहीं. हाँ यार, मतलब you आइडेंटिटी लॉस हो जाता है यार. मतलब what it asks you to do is to give up on your identity. कि who is Siddharth? There is no Siddharth. ये सब जो भी you say that Siddharth wants to work on his YouTube channel and that is his karma, कि क्या Siddharth, क्या YouTube channel, कुछ नहीं है. So but you still have to work. That's the thing. You still have to show up. You still have to make videos. You still have to make thumbnails. But there is no Siddharth. बड़े आसान नहीं है यार, because you are doing this because you want a silver button, you want a gold button, right? But if you're doing it for the gold button, you're doing it wrong. That's what the Gita says. It is so difficult because then it becomes easier कि अच्छा मैं सबको छोड़ देता हूँ. I'll go to the Himalayas, मुझे कुछ नहीं करना है. That is easier. What Gita asks you to do is नहीं, you can't go. You still have to do your work, but you can't have सेंसरी प्लेजर. भाई भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. मेरे से अब तक तो नहीं हुआ है. बहुत बहुत लंबा रास्ता बाकी है. बट फिर आपने टू थिंग्स स्ट्रक मी इस पूरे हमारे इस सेगमेंट में. पहला ये कि आपने कहा कि आप ओपीडी में थे और वहां से यहाँ की जर्नी है ना, उस जर्नी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि नाउ यू आर इन पब्लिक स्फेयर. आप चाहो न चाहो आप हो, ठीक है. अब तो आप आगे नाउ यू साइंड अप फॉर दिस, ठीक है. तो एंड हमारी बहुत टेंडेंसी, ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी, इसमें कुछ सही गलत नहीं है, कि हम कुछ भी जीवन में करते हैं उसकी जब अच्छी चीजें आती हैं तो हमें लगता है ग्रेट, उससे रिलेटेड बुरी चीज आती है तो हम पिक एंड चूज करने लगते हैं कि नहीं 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 इसके नहीं, एक सेकेंड, ऐसा जीवन है ही नहीं कि अगर आप एक यूट्यूब पे हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे. आएगा, यू हैव साइंड अप फॉर दिस. यही है जीवन, सुबह शाम दिन रात वो होना ही है, ठीक है. तो
तो वो एक फर्क हो गया, जो आप ओपीडी Right. में थे और अब जो यहाँ इस फेयर में। कभी कोई अच्छा बोलता होगा सिद्धार्थ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात, कोई बोलेगा अरे बकवास मत कर, चुप रहे, घटिया बातें कर रहा है। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, जब हम भगवत गीता की बात कर रहे थे, पता नहीं आपके साथ हो रहा था कि नहीं, बट मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है पब्लिकली, कि आप कुछ भी, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें लोगों के बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक परसेंट सा वो लगा रहता है कि मैं सब ठीक बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, मैं कुछ ऑफेंसिव तो नहीं बोल रहा। जबकि मैं और आप, हम विजिबली हमने अभी बोला है कि हम भगवत गीता को, मतलब हमारे लिए वो एक सिद्धांत है Hmm. जीवन का, और हमारे लिए बहुत वो है। बट कोई एक लाइन, कोई एक शब्द, कुछ एक ऐसा हो गया कि अरे आपने गीता कैसे बोल दिया, आपने श्रीमद् भागवत गीता क्यों नहीं बोला। Correct. तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो Correct. वो एक एक भय है, बोल लीजिए उसको, या उसको क्या बोल लीजिए। और आजकल इसको लोग कैंसिल कल्चर के नाम से जानते हैं। वो एक चीज है कि भाई पता नहीं कब कैंसिल हो जाए और क्या बोल के कैंसिल हो जाए। डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? डू यू थिंक अबाउट दिस होल वर्ल्ड ऑफ कैंसिल कल्चर? एंड व्हाट डू यू, आपको क्या लगता है 8 से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 30 दिन बाद क्या है? व्हाट विल गेट यू कैंसिल, सिद्धार्थ? Oh my God. I have मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, because initially I thought of it as a sense of curiosity कि क्यों करते हैं लोग ऐसा. तो I have a couple of theories. One is that in that brief moment, if you say कि अच्छा इसने कुछ गलत बोला, in that brief moment you are superior to the other person. So I feel that one of the reasons why people protest and जो बोलते हैं ना outrage culture, ठीक है. The true aim of outrage culture is not कि उनको actual change लाना है. That might be there, but वो moment पे बहुत pleasure मिलता है किसको, to say कि देख इसने ऐसा किया, इसने गलत किया, and that person might have achieved a lot of things in his or her life, but in that one moment you are better than that person. So to your primitive brain it's a victory. ठीक है. So that is one of the primary things that triggers outrage कि how dare you. वो कहने का point है कि मुझे prove करना है कि I am better than you. अगर सच में if we were very sensible about creating change, then that is not the way to do it. The true path towards lasting change is conversation, not outrage. किस पे भी outrage हुआ है उस पे ज्यादा change नहीं हुआ है. Gradually through sensible conversation ही change हुआ है. So that is the first thing I've understood कि अगर कोई outrage कर रहा है ना तुम्हारे पे, they want to score a temporary victory over you. It is not about कि तुमने कुछ सही बोला गलत बोला, that doesn't matter. ठीक है. And there are those people who are just waiting to hear you say something wrong so that they can feel like अच्छा I am better than you. So that is one thing that I've understood. उसमें कुछ नहीं कर सकते. That has always been a part of life. जैसे आपने कहा कि YouTube comments पे there will be some negative thing. Initially, I was very shocked. Because in general in life, if you are good to people and people are good to you, you don't hear a lot of negative things. And अगर कोई negatively कुछ बात किया तो you sort it out. बात करके अच्छा मैंने क्या बोला, अच्छा वो मैंने बोला तुझे बुरा लगा, sorry, this is what I meant to say. जो भी है दोस्तों के बीच में वो settle हो सकता है. It's very difficult to do that with an anonymous troll who is not coming into the argument with good faith. He doesn't want to make peace with you. He or she doesn't want to make peace with you. So then I understood that if you're randomly putting something on the internet, by the law of averages, अगर तुम्हें एक या दो hate comment नहीं आए, मतलब तुम्हारे core audience के बाहर तुम्हारा video गया ही नहीं. So honestly, now I've just started looking at it as a statistic. कि in any bell curve, अगर इतने सारे पॉजिटिव होंगे तो एटलीस्ट वो 99 परसेंटाइल के बाहर इतने तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के बाहर उतने तो नेगेटिव होंगे, एंड देयर बी 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर व्हिच आर बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव. जैसे आई लव यू मैरी मी वाला पॉजिटिव, वो भी होते हैं, एंड देयर बी अदर्स हु लाइक यू शुड नॉट इवन बी ऑन द इंटरनेट, गो होम, क्या कर रहा है, ये सब. सो यू हैव टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट दैट देयर विल बी बोथ एक्सट्रीम्स. But majority of the people will fall into the normal bell curve where their reactions are in tune with what you have said.
हम्म So now I just think of it as a statistic, honestly. हम्म By cancel culture, so I think you should be able to tell me more about cancel culture than I can tell you. What is your take on it? Do you get scared of it? लिटिल बिट, Mhm. प्योरली बिकॉज, प्योरली ये रीजन इतना मिडिल क्लास है, प्योरली बिकॉज आई हैव डिपेंडेंट्स परिवार में, Right. और मुझे सिर्फ और सिर्फ वही डर है जो मुझे शूल फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत याद आता है कि वो रवीना टंडन मनोज वाजपेयी को ऐसा कुछ तो डांटते हुए ये कहती है कि क्यों नहीं ला रहे बदला, तुम क्या है, क्यों डरते हो, समथिंग लाइक दैट। एंड देन यू सी द सीन एंड यू रियलाइज कि बिना उसके बोले आप समझ जाते हैं यार कि इसकी लाइफ है, फैमिली है। Right. और वो बदला तभी लास्ट में वो क्लाइमेक्स आता है जब फैमिली जा चुकी होती है, तो मैं नहीं चाहता वैसा हो कि मेरी फैमिली चली जाए। बट मैं एक बहुत एक कर्मठ इंसान हूँ जो चाहता है कि भाई मेरी मम्मी, मेरे परिवार, मेरे घर वाले, मेरा डॉग, हमारा जीवन ठीक ठाक चलता रहे। बहुत ही सेल्फिश रीजन से मैं नहीं चाहता कैंसिल, क्योंकि क्योंकि ये ऑक्यूपेशन है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप फायर क्यों नहीं होना चाहते बैंक से? हाँ, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं। जब कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तो फिर तब देखेंगे। बट Correct, होपफुली वो correct, कुछ जिम्मेदारी बनी रहे जीवन में, मुझे लगता है। correct, correct. Outrage itself is a sign of privilege. हम्म हम्म मतलब अगर तुम्हें लड़ना है तो भी एक थोड़ा सा प्रिविलेज लगता है उसके लिए। हम्म नहीं तो चुपचाप काम करोगे तुम। हम्म 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 there हम्म is there is a lot of हम्म there's a lot of paradox there. One thing I've realized is that तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम्म जैसे 10 साल के बाद क्या एक्सेप्टेबल होगा सोसाइटी में, क्या एक्सेप्टेबल नहीं होगा सोसाइटी में, ये तुम आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम्म द ओनली थिंग यू कैन डू इज टू बी जेन्युइन कि देखो ये मेरा इंटेंट था, नॉट इंटेंट टू हर्ट एनीबडी। एंड अगर तुम्हारे कोई एक्शन या वर्ड से किसका हर्ट हुआ तो जस्ट एक्सेप्ट कर लो कि यार अच्छा देखो मेरा इंटेंशन नहीं था, आई अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग यू, ये मेरा रीजन था ये कहने का, ये करने का, जो भी। एंड देन टेक अ कॉल कि वो चेंज करना है कि नहीं। एंड आई ऑल्सो फील दैट एट सम पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्योंकि आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस रिसेंटली विद समबडी इन द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन वेयर ऑनेस्टली एवरीबडी इज अ कंटेंट क्रिएटर। जो लोग अभी सोच रहे कि ये सिर्फ कोई कोई लोगों के प्रॉब्लम्स है, गोइंग अहेड हर एक जन के पास मोबाइल है, सब लोग कंटेंट डाल रहे हैं, सब लोग ट्वीट कर रहे हैं। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड कैन गेट कैंसल्ड, क्योंकि सब लोग तो इंटरनेट में ही जी रहे हैं ना, और इंटरनेट में ही सीख रहे हैं। पुराने जमाने में कैसा था, स्कूल में सीखते थे, स्कूल में कुछ गलत बोल दिया, दोस्तों ने बोला कि अरे भाई ऐसा मत बोल, क्या कर रहा है, ऐसा नहीं बोलते, तो यू रियलाइज अच्छा अच्छा नहीं बोलते। बट आजकल तो स्कूल में कोई नहीं सीख रहा है, सब लोग ट्विटर पे सीख रहे हैं, इंस्टाग्राम में सीख रहे हैं। सो इफ एवरीबडी इज लर्निंग ऑन द इंटरनेट, देन वी शुड ऑल्सो बी एबल टू फॉरगिव ऑन द इंटरनेट। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके अलावा फिर और कहाँ जाएंगे लोग सीखने के लिए? अभी यही स्कूल बन गया है। सो वी हैव टू काइंड ऑफ डेवलप दैट एम्पैथी, एंड वो एम्पैथी तभी आएगी जब सबको रियलाइज होगा कि सबके साथ ये प्रॉब्लम है। Nobody can learn anything if you don't get over this. Wow. Yeah, beautiful thought. Beautiful thought. सब Oh, लोग स्कूल में ही है यार। We are all in हम्म school. करेक्ट। और ये जो आपने प्रेडिक्शन वाली बात बोली, वो काफी सही इसलिए भी है क्योंकि आप जब आगे बढ़ने की बजाय पीछे बढ़ के पुरानी चीजें देखें तो आप रियलाइज करते हैं कि बहुत सी चीजें एक्सेप्टेबल थी 10 साल पहले फॉर सम रीजन, 20 साल पहले, जो आज नहीं है। सिमिलरली आज जो हमें बहुत ही एक्सेप्टेबल लग रहा है वो 10 साल बाद नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाट ग्रोथ इज। Yeah, like I think of some of the tweets that I'm putting out today, and I'm pretty sure कि if somebody really wants to, कुछ ना कुछ तो निकाल ही सकता है। हर एक लाइन से, हर एक जोक से। ऐसा लाइफ में, हिस्ट्री में ऐसा कोई जोक लिखा नहीं गया है जिसमें तुम कुछ ऑफेंसिव नहीं निकाल सकते उससे। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज द वेरी essence of a joke is that you are creating a humorous situation around something or somebody, and अगर उसे बुरा मानना है तो तुम कर ही सकते हो। there's no safe joke. So फिर क्या ही है, मतलब then what do तो क्या करें, जॉब छोड़ दे, क्या करें?
चलो, तो अब हमने बहुत सीरियस बात हो गई, तो अब हम दो बहुत ही फन टॉपिक से मैं क्लोज करना चाहता हूँ, ठीक है? ओके। सेट। तो मेरा पहला टॉपिक है कि मुझे ये पता है कि आपको, अगेन हम दोनों में कॉमन चीज ये है कि हमें गजलों का शौक बहुत है, अरे पोइट्री का शौक बहुत है। हम लिखते पढ़ते क्या है वो बात की बात है, बट हमें शौक तो है। ठीक हाँ। है। स्पेशली मैं जब भी लेट नाइट काम करता हूँ, स्पेशली जब ऐसा सुबह सुबह बैठ के कुछ कुछ लिख रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमेशा पीछे प्लेलिस्ट में चल रहा होता है अरे एकदम कुछ ना कुछ, या तो मेहंदी हसन चल रहे हैं, गुलाम अली चल रहे हैं, जगजीत सिंह चल रहे हैं। गजलों का काफी रहा है जीवन में। राइट। और पोइट्री अप्रिशिएट करना और समझना और वाह 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 कर देना छोटी छोटी चीजों में, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि, और हम जैसे लोग, हम भी बहुत लकी हैं कि हम, हमारा रेंज भी काफी है। कल आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा एक फ्रेंड श्रीनगर गया हुआ था, तो वो ड्राइव कर रहा था, और उसने श्रीनगर में जो उनको ड्राइवर मिले, बशीर भाई करके हुए थे, हाँ, बशीर भाई जो प्लेलिस्ट चला रहे थे वो इतनी मस्त थी, तो उसमें उन्होंने अल्ताफ राजा चलाया। क्या बात है। मेरे दोस्त ने वो रिकॉर्डिंग करके भेजा कि भाई ये गाना याद है, और वो जो अल्ताफ राजा के गानों में बीच में शेर होता था कि राइट। तुम्हें देख के तो बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। और हम ट्रिप कर रहे हैं, बिकॉज इट्स लाइक इट्स वन रेंज, और मीरता की मीर का, और गालिब और रॉक का एक और रेंज है, वो ये बहुत खूबसूरत दुनिया है। और मतलब पोइट्री में एक बहुत खूबसूरती बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो आपका क्या है पोइट्री के साथ, गजल के साथ, इंडियन, इंग्लिश, अ, इस पूरे जोन में? मेरा शुरुआत हुआ था बहुत ही वेस्टर्न हम्म। इन्फ्लुएंस से, हम्म। बिकॉज आई स्टार्टेड रीडिंग पोएट्री बाय एनिट ब्लाइटन से शुरू हुआ, फिर हम्म। पीजी वुडहाउस, वर्ड्सवर्थ का पोएम्स पढ़ रहा था, फिर एडगर एलन पो का पोएम्स पढ़ रहा हम्म। था, डॉरथी पार्कर्स हम्म। पोएम्स, सो अ लॉट ऑफ इंग्लिश इन्फ्लुएंस। हम्म। एंड मुझे काफी टाइम तक आई थॉट पोएट्री मतलब दिस हम्म। दिस इज व्हाट पोएट्री इज, अंटिल आई वेंट टू लखनऊ हम्म। एंड वहां पे आई स्टार्टेड अ पोएट्री क्लब, हम्म। क्योंकि वहां पे और लोग नहीं मिल रहे थे जो जिसको पोएट्री पसंद है। बॉम्बे में तो वैसे ही मिल जाते, लेकिन हम्म। लखनऊ में थोड़ा मुश्किल था, सो आई स्टार्टेड अ पोएट्री क्लब, फिर लोग आने लगे। एंड देन वहां पे जितना मैंने गजल और शेर सुना, एंड हम्म। नॉट जस्ट हियरिंग इट, ऑल्सो हम्म। हियरिंग अबाउट द थॉट पैटर्न दैट वेंट बिहाइंड इट, हम्म। सो आई अंडरस्टूड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, हम्म। विच इज जिस तरह से थॉट्स अरेन्ज्ड इन अ गजल हम्म। is very different from how a thought is arranged in English poetry. हम्म। So English poetry has a very linear structure. तो अगर आपको एक रोज के बारे में लिखना है, तो आप रोज के बारे में लिखना शुरू करोगे, रोज के बारे में लिखते जाओगे, और फिर रोज के बारे में लिखना कंक्लूड करके पोएम को खत्म कर दोगे कि हम्म। रोज ऐसा इवॉल्व हुआ, रोज के बारे में मुझे ये कहना है, और दैट इज वाई आई लाइक रोज वेरी मच, वो हम्म। वाला जो हम्म। फॉर्मेट है। हम्म। हम्म। In ghazals, they don't do that. हम्म। Ghazal has a very circular structure. हम्म। तो वो एक थॉट रखेंगे सेंटर पे, हम्म। और फिर वो अलग अलग तरीके से उसी थॉट पे पहुंचेंगे। हम्म। सो एवरी जो एक गजल में जो कपलेट्स होते हैं, हम्म। हम्म। हर एक कपलेट का शुरुआत हम्म। इज नॉट लिंक्ड टू द प्रीवियस कपलेट का एंडिंग। हम्म। शुरुआत बिल्कुल अलग है, हम्म। बट उसका जो लास्ट वर्ड्स है, जो क्या बोलते हैं, काफिया रदीफ, हम्म। वो उसी पॉइंट पे आके पहुंच जाता है। हम्म। एंड आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कॉमन लैंग्वेज में भी ये रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज वेन यू हियर एन इंग्लिश मैन टॉक और एन अमेरिकन टॉक वर्सेस वेन यू हियर अ लखनवी अंकल टॉक, इज सो डिफरेंट। अगर तुमने कोई ब्रिटिशर को पूछा कि भाई टाइम क्या है, तो वो टाइम बता देगा। लखनवी अंकल को टाइम पूछो, वो जो घुमाएगा तुम्हें कि देखो वक्त के बारे में अब क्या बताए। Like I have had conversations where the thinking in Urdu and those who write ghazals are very tangential. Like उनको कोई भी टॉपिक पे वो सर्कल करके वो पहुंचते हैं। And I found this very interesting कि वो पोएट्री कैसे ओवरऑल कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। And yeah, like I feel like English poetry misses out on that beauty. वाह। ओहो हो, मेरे दिमाग में सारे ऐसे बीच बीच के शेर, या जो आप बोल रहे थे ना, तो हर गजल का वो पैटर्न याद आ रहा था। एक एक थॉट से शुरू हो जाता है वो, फिर यहाँ, फिर वापस, फिर वहां, फिर वापस।
ब्यूटीफुल। it's a tease, it's a brain tease. या इट्स फिर कई बार आपको ऐसा यू स्टार्ट प्रेडिक्टिंग कि ये यहाँ इधर गया तो अच्छा ऐसे, ओ यहाँ पे आया, ऐसे वापस लेके ऐसे आया वापस आया। उसको. Okay, Sid, I want to end with the only not relatable topic for the day for me. Okay. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास थॉट्स हैं अबाउट बोर्ड गेम्स, प्ले स्टेशन, निंटेंडो वगैरह वगैरह वगैरह। और ये एक चीज है सिड, फॉर सम रीजन, मैं आपसे बाद में अलग से भी बात करूंगा, जो मुझे कभी आई नहीं। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये मैंने पूरे जीवन अपने कभी भी प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स इसका फैसिनेशन नहीं आया, बोर्ड गेम्स का नहीं आया। बोर्ड गेम्स जैसे ही कोई बोलता है मुझे लगता है कुछ और करते हैं ना, यू नो। जैसे हमारे घर में कल रात ही अपने 2-3 हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स आए हुए थे, और बाहर बोर्ड गेम्स बहुत सारे रखे हुए, तो उन्होंने कहा अरे ये खेल सकते हैं, वो खेल सकते हैं। मैंने कहा इसमें से एक भी नहीं खोला है मैंने, ये सारे गिफ्ट हैं। क्योंकि लोग समाव अज्यूम करते हैं कि थोड़ा ऐसा इस जोन में कि जो पसंद होगा तुझे, कटान वटान और ये वो कुछ। Yeah. मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी मन नहीं। वो कार्ड्स भी तुम खेलोगे, जब कोई एक्सप्लेन करने लगता है ना कि तो देख 29 में ना ऐसा वैसा, मतलब कुछ मूवी देख लेते हैं यार, गाने सुन लेते हैं, मत कर ये सब। डमशराट खेल लेते हैं यार, डमशराट प्लीज, अंताक्षरी खिला लो, ये मत करो। तो आपका Oh, क्या है इस गेम्स की दुनिया में opinion? honestly, मतलब I am surprised क्योंकि मुझे भी ऐसा वो हाँ है ना, vibe. वो हाँ, right, पोजीशनिंग है मेरी, मुझे पता है। वो you एक give that vibe, आई dude. गिव दैट वाइब कि अरे जैसे शासन अभी आजकल लोग बात कर रहे हैं कि Of अरे course. शासन खेलो यार, क्या तुम, मैं कहा मुझे खेलना ही नहीं है। हाँ. लूडो इज द मैक्सिमम, जेन्युइनली नॉट एज अ जोक, लूडो इज द ओनली बोर्ड गेम दैट आई हैव प्लेड लिटिल बिट अरे इन। नहीं यार, चेस भी बोल दो, I think चेस भी थोड़ा important है. चेस भी थोड़ा बहुत, बट ये कभी नहीं हो पाया। कभी किसी दोस्त के यहाँ थोड़ा बहुत प्ले स्टेशन ट्राई कर लिया, उसमें भी वो कि वो खेल लिया। हाँ, आजकल वो चल रहा है ना कि टेनिस. अरे आप खेल हाँ. लेते हैं टेनिस, हाँ, correct. बॉलिंग, बट कभी नहीं। Oh, I'm very surprised, but I think उसका जो रीजन है, आई थिंक इट्स अबाउट योर चाइल्डहुड, मतलब आपने बचपन में कितना खेला है. बिकॉज उसी से तुम्हारा वो लव पैदा हो जाता है उसी टाइम पे. लाइक इवन व्हेन आई वाज अ किड, जब पहली बार कंप्यूटर आया था, आई गॉट ऑब्सेस्ड विद दिस गेम कॉल्ड डेंजरस डेव. ओके। और मतलब उसमें द गेम इटसेल्फ इज क्वाइट सिंपल कि चलो यू हैव टू क्रॉस 10 लेवल्स, बट देन वी यूज्ड टू डू दिस थिंग कॉल्ड स्पीड रन. सो मी एंड माय ब्रदर वुड टाइम इट कि अच्छा 10 लेवल्स तुम कितने टाइम में फिनिश कर सकते हो. और वो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाता है गेम्स के वजह से, आई हैव समहाउ नेवर लेट गो. उसके बाद से जब भी कोई नया गेम आता है, पहले तो वो क्रैक्ड सीडी वर्जन्स आते थे, तो सीडी खरीद के लेके आते थे, और फिर इंटरनेट से कहीं पे तो उसका पास कोड कहीं से तो निकाल लो, एंड देन यू स्टार्ट प्लेइंग इट. वो चर्चगेट स्टेशन के सामने गेम्स बिकते थे, तो वहां तक जाके 50 रुपए में एक सीडी आता था. तो वो सब बहुत करता था मैं. लाइक आई यूज्ड टू लव प्लेइंग दोस गेम्स. रात रात बैठ के फीफा खेलो, वो सब. और जब से प्ले स्टेशन आ गया था, पहले तो मेरा आई वाज इन द एक्सबॉक्स कैंप, एंड देन अभी रिसेंटली आई मूव टू प्ले स्टेशन. इट ऑलवेज गिव्स मी अ लॉट ऑफ कंफर्ट बिकॉज इट फील्स लाइक यू आर इन योर ओन बबल. कि बाकी पूरा दुनिया थोड़े देर के लिए इट इज आउट, and now you are in your own bubble where you are independent. So that feeling has always been very comfortable. Recent addition to this is board games. So board games ka the concept is ki how you can change your living room into a completely different place. मतलब 6 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और एक कॉन्वर्सेशन का एक वाइब होता है, you know where it's going. But the power of board games is that it is like virtual reality. जैसे आपने अपने कतान मेंशन किया. So while you are playing that game, you are in that map. मतलब अब एक्चुअली मैप के अंदर वुड ढूंढ रहे हो, शीप ढूंढ रहे हो, आप घर बना रहे हो, आप मोनोपोली में इन फॉर दोस 2 hours you are in that board. तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है. आई फील लाइक उसमें इट्स लाइक अ शेयर्ड रियलिटी जो हम लोग किसी के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो थोड़ी देर के लिए. Good conversations can also do this, but that has always been like a personal favorite of mine. Wow, I can already guess आपके घर में कौन कौन आया होगा जो आप वो सरप्राइज्ड हो गए थे. और उसमें से एक गिफ्ट जो था वो हाँ. उनमें से ही किसी ने दिया था.
तो इधर बैठे थे, मैंने बोला अरे ये लोगों ने गिफ्ट दे दिया है भाई, मैं नहीं खेलता। कहते हैं, हाँ वो वाला तो मेरा ही है। मैंने कहा हाँ यार, मतलब कुछ दोस्त खेलते हैं यार, मैं नहीं खेलता। अच्छा, तो पैकेट पैकेट खुला क्यों नहीं है? हाँ, थैंकफुली उसने देखा नहीं। बट पता नहीं, आपने शायद चाइल्डहुड वाली बात की, शायद वो है, क्योंकि मैं बड़े ऐसा 3-4 साल का था तो हॉस्टल चला गया था। हॉस्टल में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था वीडियो गेम वगैरह का, हाँ। ग्राउंड पे क्रिकेट वगैरह ही खेलते थे। फिर जब इंजीनियरिंग में गया, इंजीनियरिंग हॉस्टल में तो पूरे टाइम गेम चलता रहता था। और कोई भी मुझे चमका, मतलब एक वो होता है ना कि इतने लोगों से जब तुम कोई वायरल वीडियो रेफर करो और वो बोलते हैं ये क्या है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये नहीं पता? तुम्हें, हाँ। अरे, नहीं देखा कभी अरे यार कैसा है यार। तो मुझे वो, मतलब मेरे सामने सामने काउंटर स्ट्राइक, फीफा, एज ऑफ एम्पायर, अच्छा, डोटा, सीएस, आप काउंटर स्ट्राइक पे भी नहीं गए? भाई सब मुझे तो कुछ लगा खेले। इंजीनियरिंग से वो लोग निकाल देते अगर काउंटर स्ट्राइक नहीं वही खेलते हो वही वही काउंटर स्ट्राइक मेरे रूम पे मैं दिन रात चलता था, और मेरा एकदम ही, यार एक ये बस बिल्कुल ही छूट गई जीवन में। नहीं नहीं, आपसे मतलब आपका लाइफ स्पैन प्रॉब्ली 5 से 7 साल से बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना टाइम बच जाता है अगर आप कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलते हो तो। वही, हाँ वही, मैं अपने आप को वही सांत्वना दे देता हूँ वही। कि नहीं यार टाइम तो बचा। नाउ नाउ एवरीबॉडी विल नो कि आपको इतना सारा जनरल नॉलेज कैसा है, कि भाई हाँ, बहुत टाइम है आपके मैं पास। बोलने ही वाला था अभी कि जब लोग वो कर रहे थे तो विकिपीडिया नया नया आया था। मेरे लिए वही वीडियो गेम था कि भाई ये क्या जीनियस चीज बना दी है दुनिया ने, इसमें डालो और हर चीज पे आर्टिकल है, अरे ये क्या है। भाई अच्छा, आपने ये गेम खेला है क्या विकिपीडिया पे, कि मैं आपको एक वर्ड दूंगा, मैं आपको जैसे आई गिव यू बराक ओबामा, हम्म। ओके, और आपके पास 10 सेकंड है, हम्म। आपको बराक ओबामा का विकिपीडिया का पेज खोलना है, हम्म। एंड यू कैन क्लिक ऑन एनी लिंक, हम्म। बट आपको 10 सेकंड में जस्टिन बीबर तक पहुंचना है। ओ ऐसा, नाइस, ये कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो दिस इज अ गेम आई थिंक यू विल ओ रियली एंजॉय। यस, आई हैव, ओ हो, दिस इज इंटरेस्टिंग, मस्ट डू मस्ट डू। क्योंकि इसका, नॉट दिस थिंग एग्जैक्टली, बट मेरे दिमाग में एक एल्गोरिथम फॉर मेकिंग क्विज तब ये होता था हाँ। जब इंजीनियरिंग में विकिपीडिया नया नया आया था। तो मैंने ऐसा चैलेंज बनाया था कि मैं विकिपीडिया पे कोई एक आर्टिकल खोलूंगा और फिर वो बंद नहीं होगा, उसी के थ्रू क्वेश्चन बनेंगे। तो बराक ओबामा पे एक क्वेश्चन बन गया और उसमें कोई क्लिक किया आपने, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या फिर राइट। केनिया या कुछ, अब क्लिक किया, अब वहां से अगला क्वेश्चन क्लिक, वहां से अगला तो पूरा नाइस। 20-25 क्वेश्चन जो उस क्विज में बना है वो उसके थ्रू बना है। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। बहुत ही बढ़िया, सुपर्ब, आई लव इट। अच्छा, अभी लोगों को पता चल रहा है योर सीक्रेट्स, या ओके। दिस इज, या ये 2006-7 में ऐसे बनाता था मैं। अभी भी मुझे ऐसा, तो इतना पैटर्न, अगर कोई मुझे ऐसा 10 क्वेश्चन का क्विज दिखाता है ना, तो मैं समझ तो जाता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ इसके क्वेश्चंस गए हैं और ये इसने कैसे बनाए ये। अच्छा, यू आर डिकोडिंग अदर क्विजर्स। या वो इतना इंस्टिंक्टली, वो इंस्टिंक्ट आपके अंदर, इंस्टिंक्टली, इंस्टिंक्टिवली मैं तो, इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली मेरे दिमाग में, ये आई थिंक शूल मेरे दिमाग में घुस गई। शूल में एक बड़ा अच्छा सीन है जिसमें कि वो बोलता है कि अरे अरे वो कौन सी फिल्म देखी रही यार, उसमें ऐसा जो होता है, ये वो क्या नाम था यार, बेसिक, बेसिक बेसिक। तो वहां से वो बोलते हैं, मनोज वाजपेयी ऐसा सीरियस बैठे होते हैं और कहते हैं इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट, बड़ा इंस्टिंक्टली बोल दिया समर बाबू है। On that wonderful note, thank you for this amazing conversation, Sid. We covered all everything from poetry, ghazal to games to, I don't know, spirituality, driving, cancel culture, etc., etc. So now we'll go to rapid fire. इसमें एक ही रूल है, Sid, that you can't think. जो ओके, टॉप ऑफ द माइंड आएगा वही बोलना है, और बहुत सिंपल, ऐसा कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। और एक बार हम आपके आंसर्स देख लेंगे, इनकेस आपको 1 मिनट कुछ उसमें ऐड करना हो कि ठीक ये। है, हाँ, डन। ठीक है, लेट्स रेडी? गो। या, डन डन। फेवरेट रेस्टोरेंट? फेवरेट रेस्टोरेंट इज अवन फ्रेश इन दादर। बहुत पुराना डेटिंग स्पॉट था मेरा और स्मृति का, तो वेरी फॉन्ड मेमोरीज। अरे दैट वुड बी इट, यस। ओके, फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सेप्ट फेवरेट योर? यूट्यूब, ओ अभी तो करंटली इट्स वेरिटेसियम, फिजिक्स, वेरिटेसियम। वेरिटेसियम, ओके। So he talks about physics and he makes physics so interesting. मतलब वो स्टोरी फॉर्मेट में फिजिक्स सिखाता है, अरे वाह, सारे जो फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स है, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया चैनल है। वेरिटेसियम। फेवरेट बुक? हाँ, हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। इसमें तो बस बस वही है, मैंने देखा। तो हाईली रिकमेंडिंग फ्रॉम बोथ ऑफ अस।
One of the Oh, greatest books ever written. that is after Bhagavad Gita, I think it is the most philosophical book. और दोनों में गैलेक्सी और यूनिवर्स की बहुत बात Absolutely. है. Okay, Hitchhiker. Best thing about Lucknow. Best thing about Lucknow. Oof, क्या difficult question है यार. So kebab, chaat, poetry. अभी कैसे decide करूँ? नहीं चलेगा, तीन ये आपने हाँ. बहुत शॉर्ट में अच्छे से बोल दिया. कबाब, चाट, पोएट्री. ओके. फेवरेट फिल्म. Favorite film. There's a movie called Man from Earth. हम्म. हाँ, तो वो YouTube पे था. I don't know अभी कहाँ पे है. But talks about a man who's always been alive since the beginning. तो क्या क्या उसने देखा है, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है. बहुत प्ले भी है बहुत वो. सुंदर. प्ले Sorry? था, मूवी बनी, फिर अभी भी प्ले लोग था. प्ले करते हैं. Oh wow. हाँ, Okay. तो एक्चुअली एक बार इसका एक अडेप्टेशन में मैं गया था टू रीड फॉर अ कैरेक्टर, फिर मैंने किया नहीं. बट Oh. वही में कर रहे थे वो मैन फ्रॉम मुझे अर्थ. लगा था, पता है, because the setting is so simple. इट्स वेरी एक प्ले रूम टाइप में. ना, जस्ट कैरेक्टर्स कमिंग एंड ऐसा. Correct. So that has always been a dream of mine कि I want to write something like that कि एक रूम में सिर्फ conversation और पूरे conversation से ही तुम पूरा story निकालो. It is such a good plot. फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन. Oh, there is this city called Zadar in Croatia. I've been there once before. It is such a beautiful, calm, scenic place, and it has the Alfred Hitchcock said Zadar has the best sunsets in the world. Oh wow. And I agree. Like it is too good. Wow. Yeah, that would be my retirement spot. Define a healthy relationship in one word. Like most Ooh. critical part of a healthy relationship. Yeah. Space. Yes. Yes. Okay. Most fascinating thing about human brain. Most fascinating thing about human brain is oh wow. Again, अगर एक word में बोलना है तो I would say change. एक लाइन में Because बोल दीजिए. हाँ, so the ability to deal with change is, I think, close to infinite. If it is given time and if it is given resources, I think the brain has close to infinite capacity to deal with change, which I find incredible. One poem that defines you. Okay, so this is a poem called Alone by Edgar Allan Poe. And the reason I say it defines me is because it used to define me for so long that I feel it has become a part of me now. And it talks about how, especially the first 8 lines, talks about how even when you're happy with somebody or you're sad with somebody, you're experiencing anything with anybody, you are still doing it alone. And we often forget that. हमको लगता है कि हम लोग सब कुछ साथ में कर रहे हैं, but individually सब लोग अपना अपना ही लाइफ जी रहे हैं. And if 2 people are enjoying the same moment, they're actually enjoying 2 different moments. क्योंकि सबका स्टोरी अलग है, सब लोग का पर्सपेक्टिव अलग है. तो अगर तुम कभी ऐसे सोचोगे कि यार आई एम फीलिंग अलोन, ब्रो, यू आर ऑलवेज अलोन. You're just realizing it sometimes. So I absolutely love this poem. I know it sounds very dark, but for me it's a very optimistic poem. नहीं मतलब आई अग्री. मतलब अग्री मैं कौन होता हूँ करने वाला. अरे नहीं यार. बहुत बहुत एक ऐसा कई बार ऐसे मोमेंट्स जैसे आपने ये जो बोला है बड़ा वैसा गूज बम्स वाला है ना कि ओ शिट क्या बोल रहे हैं. ऐसे ही था कि एक पूरी ये फिलॉसफी ऑन सिमिलर लाइन ये कि जीवन में हम लोग बहुत बोलते हैं ना कि व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज लाइफ. और सिर्फ ये वही है जो आप देख और सोच रहे हो. अब ये सुनने में कितनी बेसिक बात लग रही है कि हाँ ऑब्वियसली वही है, बट इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट यू सेड कि हम जो ये अभी बात कर रहे हैं ये मेरी रियलिटी है और आपकी रियलिटी है, बट हम दोनों की रियलिटी फिलहाल अलग अलग है. Correct. आप जो देख रहे हो अभी एज आई स्पीक वो कुछ और है और मैं जो देख रहा हूँ वो कुछ और है. Exactly. ये ऐसा छोटी छोटी चीजें जो होती है ना कि ये पूरा जीवन सिर्फ यही है जो आपने देखा, आपने सोचा, आपने एक्सपीरियंस किया और कुछ नहीं है. और क्या कहाँ चल रहा है वो नहीं है तुम्हारा जीवन. सच में. It's very Sometimes it's very difficult to wrap your head around. मैं कभी सोचता हूँ ये जो सेंटेंस है जो it gets thrown around a lot, सब मोह माया है. You know, you say that, like बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं सब मोह माया है. I was thinking of the meaning of that sentence, and honestly I can talk about it for like 2 hours. सब मोह माया है, because every word has so much to unpack. Like sub means everything.
Every single thing is more. More is desire, attraction, motivation, what you want, expectation. So what you are expecting to see, you will see. अगर तुमने सोचा ही नहीं है कि वो होगा तो नहीं है. You remember in Hitchhikers there is this thing called somebody else's problem. तो एक मतलब if you are not expecting that, then you won't even see it. It is better than being invisible. And then Maya is illusion. So everything, all of reality is constructed out of prediction and illusion. As a neuroscientist, I'm telling you, this is cutting edge stuff. It blows my mind, dude. Like, okay, last question. Most important thing for a person's mental health. Oh wow. Like a good, healthy mental. Yeah. So the one thing I feel is you need to have reserve of everything. So we understand this concept so well in terms of finances. कि अच्छा तुम्हारे पास सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख है, बट म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड डिपॉजिट में 5 लाख है. मतलब यू हैव अ रिजर्व ऑफ 5 lakhs एंड यू हैव सम नॉर्मल स्पेंडिंग ऑफ 1 lakh. लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में लोग इसके बारे में ऐसा नहीं सोचते. यू नो, यू गिव इट योर ऑल बोलते हैं. अरे तुम इफ यू गिव इट योर ऑल देन व्हाट विल हैपन इफ समथिंग एल्स कम्स अप. सो वी आर सो ऑन द एज, वी आर गिविंग इट एवरीथिंग. हम लोग लाइक यू नो गिव इट योर बेस्ट शॉट. But what about your reserve? How much more can you take? Because you can never predict कि you are giving it everything and उसी दिन तुम्हारा बॉस को एक मूड ऑफ हो गया, तुमको गाली दे दिया. That's it. You don't have enough reserve to deal with that. Your mental health is screwed. So it is very important to think of mental health like physical health. What is your reserve? Like on a normal day, you can lift 10 kgs, but emergency में can you lift 100? You know, अगर तुम्हारे पैर पे टेबल गिर गया और टेबल का वेट 100 किलो है, कैन यू लिफ्ट इट? तो वो रिजर्व होना चाहिए. एंड वो रिजर्व ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए तुम्हें वर्कआउट करना पड़ता है. तो द रीजन यू वर्कआउट इज नॉट टू लुक गुड और टू हैव 6 pack. द रीजन यू वर्कआउट, यू गो फॉर रन, इज सो दैट यू गेट रिजर्व. कि व्हेन दैट डे कम्स, व्हेन योर बॉडी इज फॉलिंग इल, तुम्हारे पास उतना लंग कैपेसिटी है, उतना हार्ट कैपेसिटी है, उतना मसल कैपेसिटी है टू टेक दैट. Just like that, mental health में you need to build reserve. You need to work out your resilience even when you don't need it. ऐसा नहीं बोलेगा कि चलो when things get screwed up तभी देख लेंगे. भाई तभी तुम्हारे पास reserve नहीं होगा. So I feel this is a concept that people don't talk about enough. Reserve. Nice. That brings us to the end of the rapid fire. I think सब में आपने थोड़ा ऐड कर ही दिया, but I'll just go through it in case you feel like कुछ ऐड करना है. Favorite restaurant was Oven Fresh Dadar for your nostalgic dating memories. Veritasium, yes. Veritasium. We will put a link. So also. Veritasium is a I think a Latin word for truth serum. And he made his channel name is Veritasium, where he made an atomic symbol called VE. And he has put the atomic number as 42. I'm guessing as a reference. Yeah. So that's why I really like that channel. Wow. Favorite book: Hitchhiker, Kebab, Chaat, Poetry, Man from Earth, Zadar, Croatia, Space. इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं क्या? Sid, define a healthy relationship in one word. मतलब I also, मेरा भी आंसर शायद यही होता है. हाँ, because I feel extremely critical. Yes. Space का क्या, like relationship का concept क्या है कि you want to get into a relationship because you feel that my life will be better in that relationship than out of that relationship. So you want to get into a relationship in order to grow. तो तुम्हारा life improve हो जाता है. And because of you want that other person to grow. But for growth, you also need space. So how much is that space? So too much space and there is you are independent. Too little space and there is no growth. So how much space is the right amount of space for growth? That is a constantly changing dynamic. So I have started looking at relationships in a very like physics way, engineering way. What is the thermodynamics of space in a relationship? तुम कितना स्पेस दे रहे हो एक दूसरे को. ज्यादा स्पेस हो गया तो पास में आना है.
अगर कम स्पेस हो गया तो थोड़ा दूर जाना है. And if Hmm. you keep maintaining that correct distance, Hmm. a relationship is beautiful. वाह, ऑप्टिमम आपको अपना ढूंढते रहना है. Optimum Oh, space. very nice. Okay. Most fascinating thing about brain, you said ability to deal with change. One poem that defines you, we spoke about. Very heart sinking thing, and most important thing for good mental health, reserve. Thank you on that note, Sid. Thank you so much for premiering this season for me and taking out Thank time. you. I'm sure. Thank you. This was an honor. I'm so glad to be here. Thank you, Sid. Thank you.